Hello friends and welcome to our channel Weekend Class channel, and today we will talk about the structure of power sharing in Sri Lanka, and we will also discuss a little bit about the power structure in Lebanon as well. So let's get started. Now, as we know that Sri Lanka is an island nation. It is just situated south of India. The total population is about 2 crore people or 20 million. Now, the major social groups which are existing, which form the diverse population of Sri Lanka, are the singles, who are the dominant community, the single linguistic community, which is the dominant community. It comprises about 74% of the population. Now, the other dominant community is Tamil speaking community. With that comprises about 18% of the total population. And in the Tamil speaking 18, the Sri Lankan Tamils are 13% and 5% are Indian Tamils. These 5% Indian Tamils mostly came as plantation workers. They are the descendants of their forefathers, and their forefathers, they came in Sri Lanka as plantation workers when the British Raj was there. Now, when we see the religion, mostly the Singhals follow Buddhism. Tamils, they are mostly Hindus and some are Muslims also. 7% Christians also are there, and these comprise both communities, the Tamils as well as the Singhal communities. Now, we saw the scenario of power sharing in Belgium. Now, we see the scenario here in Sri Lanka. Sri Lanka was independent in 1948 from the British rule. Before that, it was known as Ceylon, and after gaining independence, Ceylon became Sri Lanka. Now, in that scenario, the Singhals leaders, because Sinhalese were in majority, so the dominant leaders were also Singhals. So the dominant leaders were also Singhals. So by virtue of their majority of population, they sought to have dominance over government as well. मतलब उनकी जो पॉपुलेशन थी, चूंकि वो मेजॉरिटी में थे, तो उसी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी थी उसी के हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट में भी अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहा. तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंगल सुप्रीमेसी. तो ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जो कि इलेक्शन के बाद हुआ था, तो जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, क्योंकि सिंगल पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में थी, तो जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसमें भी सिंगल्स की मेजॉरिटी थी. तो इट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स. मेजॉरिटेरियन मेजर्स ये होता है कि उन मेजॉरिटी की पॉपुलेशन जो है उसको सिर्फ फ़ायदा उठाया जाए. तो ऐसे कदम उठाए जाएं so that they may benefit the cause of the majority population, and so it undermines the cause of the minority population, and as a result of that the minority population will get alienated. Now, in that series, in 1956 an act was passed to recognize Singhal as official language. मतलब 1956 में 1956 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें सिंघल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया. इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स थी, उसमें जो गवर्नमेंट ने किसको फेवर किया? सिंघल एप्लीकेंट्स को. इसके अलावा जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने भी गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन के रूप में प्रमोट करे. और ये जो है श्रीलंका के टोटल ढांचे पे ये एक बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि कोई भी एक सेकुलर कंट्री जो है वो कभी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन को प्रमोट करने को कहा. सो ये जो था एक टोटली डेमोक्रेटिक ढांचे के विरुद्ध था. दिस वॉज नॉट इन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक मेजर्स. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस? इसका रिजल्ट ये हुआ कि दिस लेड टू एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स हु फेल्ट दैट they were cheated and the language and culture was ignored by the political parties. उन्होंने ये देखा कि क्या कहते हैं, उनके जो लैंग्वेज और कल्चर है उनको उसी तरीके से प्रमोट नहीं किया गया पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जैसे कि सिंगल्स को किया गया. इसके अलावा उनको जो पॉलिटिकल राइट्स थे, दे वर ऑल्सो डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उसके अलावा
जॉब्स में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, सिंगल्स को हमेशा से प्रमोट किया गया। अब दिस लेड टू स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन सिंगल्स एंड तमिल कम्युनिटीज। इसका वजह से कई जो है पार्टीज एंड स्ट्रगल जो है लॉन्च हुए। क्यों? बिकॉज वो संतुष्ट नहीं थे सिंगल गवर्नमेंट से, तो कई पार्टीज फॉर्म हुई। इसके अलावा स्ट्रगल हुआ कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब उनको भी स्वायत्तता मिले, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो इन सब मांगों के साथ कई राजनीतिक पार्टियां और संघर्ष जो है वो शुरू हुआ, राजनीतिक संघर्ष। लेकिन इसके बावजूद इनकी एक न सुनी गई। दीज वे डिनाइड। बाई 1980 के दशक में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बने जो कि तमिल के थे, और उन्होंने एक तमिल ईलम की स्थापना की बात की, जो वो ये जो तमिल ईलम था वो नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में था, क्योंकि नदर्न पार्ट में जो मोस्टली पॉपुलेशन थी डेट वेयर ऑफ तमिल, श्रीलंकन तमिल्स, और ईस्टर्न पार्ट में इंडियन तमिल्स की थी। तो उन्होंने इस बात की मांग की। अब ये जो रिजल्ट है, इसकी वजह से तमिल और सिंघल कम्युनिटीज में एक सिविल वॉर छिड़ गया, और इस सिविल वॉर की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। हजार लोग जो है वो मारे गए, और इन हजार लोगों में मारे जाने वालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थे, राजीव गांधी, उन पर हमला भी हुआ था। और उसके बाद जब वो सत्ता से हट गए तो 1990s में उनकी जो हत्या हुई थी वो लिट्टे नहीं की थी, LTTE, लिबरेशन फॉर तमिल टाइगर इलम। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया, बिकॉज राजीव गांधी हेल्प्ड द श्रीलंकन गवर्नमेंट। नाउ ये जो सिविल वॉर है, इसकी वजह से कई लोग मारे गए, एंड मेनी फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज एज रेफ्यूजीज। कई जो हैं वो भारत के तमिलनाडु में, राज्य में कई इंडियन तमिल आ गए, अब उनको अपनी कंट्री जो है वो छोड़नी पड़ी। अब ये जो है श्रीलंका जैसे कंट्री, जो कि बहुत ही डाइवर्स, जहाँ पे कल्चर था, सोसाइटी थी और इकोनॉमी थी, उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा इससे। अब ये जो सिविल वॉर है ये कब एंड हुआ? 2009 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट विद बेल्जियम, जहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट के हिसाब से सभी लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वो जो है अपना पकड़ बनाने की कोशिश। तो देयर वाज अ क्वाइट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। नाउ वी कम टू द केस ऑफ लेबनान। लेबनान जो है वो मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड एक कंट्री है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वॉर रेवेज्ड कंट्री। तो यहाँ आप लेबनान को देखिए, तो लेबनान के आसपास सीरिया है, और यहाँ के बगल में ये इज़राइल है, ये सीरिया है, इज़राइल इधर है, ये लेबनान है। तो यहाँ जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है बेरूत में, खासकर ये बेरूत जो है, यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है। अब जो है शिया पॉपुलेशन भी काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर कम्युनिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस एग्जिस्ट करती हैं। लेबनान को भी कई दशक तक, सेवरल डिकेड्स ऑफ सिविल वॉर का सामना करना पड़ा, जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, थाउजेंड्स ही नहीं लैक्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में है लेबनान में। अब पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या था, क्यों वॉर हुआ? द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट वॉज कि मुस्लिम जो है वो बगल में जो ये सीरिया आपको दिख रहा है, इस सीरिया के साथ जो है वो यूनाइट होना चाहते थे, जबकि क्रिश्चियंस जो है इसके अगेंस्ट फ्रेंच प्रोटेक्शन चाहते थे, फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। तो जब एक सिविल वॉर जो था इसकी वजह से जो छिड़ा हुआ था, जब ये बंद हुआ तो जो ये सभी कम्युनिटीज़ जो लेबनान में थीं वो एक पावर शेयरिंग के एग्रीमेंट पे उन्होंने समझौता किया। अब वो समझौता किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या रूल थे वो जो पावर शेयरिंग के? तो द रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग वाज कि सबसे पहली चीज़ की जो कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियंस के मैरोनाइट सेक्ट से होगा। मैरोनाइट सेक्ट एक सेक्ट होता है कैथोलिक क्रिश्चियंस का, तो वहाँ से कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा चुना जाएगा। दूसरी चीज़ जो व्यवस्था की गई कि जो कंट्री का प्रधानमंत्री होगा वो मुस्लिम की सुन्नी कम्युनिटी से होगा, मुस्लिम्स में सुन्नी कम्युनिटी से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। तीसरी चीज़ जो है कि कंट्री का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट से होगा। इसके अलावा
जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो कंट्री के शिया मुस्लिम्स की होगी। तो अब ये जो समझौता था, इसमें जो कंट्री के चारों जो मेन डाइवर्स पॉपुलेशन थी उसको एकोमोडेट कर लिया गया और चारों पक्षों को ये समझौता स्वीकार हुआ। एंड ड्यू टू दिस पैक्ट पीस वॉज रिस्टोर्ड इन लेबनान। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हाउ पावर शेयरिंग वॉज डेल्ट इन श्रीलंका एंड लेबनान। While in Sri Lanka, majoritarian measures were adopted that resulted in civil war. Lebanon was a totally different case. यहाँ पे जो पावर है वो चार में डिवॉल्व हुई। So friends, today we will end here, and in the next episode we will discuss about the power sharing and its major rules and why power sharing is desirable. Till then, please be tuned with us. Thank you.